Welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and in today's session we are going to talk about train your brain for NID UC 2027. So my question is, how are you approaching for this design entrance exam of NID and UC? You must be aware about the second question of UC, which usually comes from futuristic designs and product designs or problem solving. Now NIDs, most of the questions, like 3 or 4 questions, not only in the first round but also in the studio test, do usually comes from your problem solving areas. Like if you are sketching any product or making any design, is it just beautification, or you have a keen observation of the who are going to be the users of that very product? Is it ergonomic or not? So everything matters a lot, and that's how when you approach the question. And the baseline is mind mapping. So mind mapping is not only limited to where you put a centralized word and you feature many words around it. There are many things which you can do under mind mapping. So we are going to discuss about how you should approach any question, what are the things you should keep in your mind before attempting any question, and that's how you must start preparation of your UCEED and NID. So the students who are new on my channel, please subscribe it, please share it and like it, क्योंकि आपको इतने important sessions और कहीं नहीं मिलेंगे. Now guys, a powerful way to train your brain for this is through mind mapping. So मैंने जैसे कहा कि mind mapping सिर्फ वहीं तक limited नहीं है कि आपने बीच में कोई word लिख दिया, like India लिख दिया, India के states, फिर states को भी हमने और divide कर दिया. So it's not only limited to that. There are various approaches of mind mapping which I am going to explain you. So firstly, radial observational mapping. Now यहाँ पे radial का मतलब ही ये होता है कि कोई सेंट्रलाइज्ड आइडिया हो और आप उसको जितना ब्रेक डाउन कर पाओ. नाउ इसको कैसे अप्रोच करते हैं? नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेरी इन देयर माइंड कि मैम क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं, कैसे सोचे, कैसे डिसाइड करें कि हमें यही बनाना है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो NID देखता है कि क्या आपका जो डिज़ाइन है वो लॉजिकल है, वो सेंसिबल है. एंड लॉजिकल एंड सेंसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन कि उसको यूज़ कौन करेगा, उसके क्या फीचर्स हैं एंड क्या वो पॉसिबल है. सो एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट. इफ़ यू आर डिसाइडिंग अ यूज़र फॉर एनी प्रोडक्ट, have you empathized about the situation of that user and then made that product? So everything is very important. Now let's start with a simple example of a umbrella. अगर आप umbrella के बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? What are the things actually? We can think about the materials, we can think about the any cultural preference जो हो सकता है. We can think about कि क्या उससे water save हो सकता है, और maybe there are different umbrellas in the texture, और maybe shapes तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन उसमें भी कुछ conical होते हैं, कुछ ज़्यादा conical होते हैं. So there are different aspects of the umbrella which we can think. Like we can think in the aspect of material, shape, user problem, improvement क्या हो सकती है, history में कितने umbrellas हुए हैं. जो ministries में umbrella यूज़ होते हैं they are very different. जो हम usually अपने घरों में यूज़ करते हैं like to save us from heavy rain, उसका एक अलग aspect होता है. Sustainability के लिए umbrellas कैसे यूज़ हो सकते हैं, cultural significance क्या है. जब मैंने monasteries की बात की तो उसमें cultural significance आ गया. Similarly emotional values. तो ये एक umbrella को मैंने बीच में रख करके उसके various aspects को देखा, उसका material देखा, उसका shape, user का problem देखा. There are different users ना for umbrella also. Like if I am going to office, my umbrella would be slightly according to my size, my height, उसी के वही उसका circumference होगा. लेकिन if a kid is using the umbrella, उसके umbrellas आप देखोगे कि थोड़े funky होते हैं, थोड़े colorful होते हैं. So again, according to the user, the product is made. Now on that aspect, I can think about that. Can it collect rain water? क्या इसका कोई dual use है? Can it become solar powered? क्या ये solar powered भी हो सकता है? Or can visually impaired people can use it differently? Or maybe it can become an emergency shelter for maybe dogs. तो
क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक अम्ब्रेला के? जब आप इतने वेरिएशंस में किसी प्रोडक्ट को लेकर के सोचते हो तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग. दिस टेक्निक डेवलप्स डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल टेस्टेड इन NID. नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के लिए जब आप अपीयर होते हो, द होल पेपर इज depending upon your creative skills, creative ideas, your observation skills, your ergonomic aspect of that very product which you are making, if it is user centric, if it is solving that problem. So अगर ये सारे aspects के basis पे आप design करते हो, definitely NID आप crack कर पाओगे. If it is only limited ऑन द ब्यूटिफिकेशन एस्पेक्ट कि आप बहुत सुंदर कलर करके आ गए, बहुत फंकी अम्ब्रेला बना करके आ गए, बट यू आर अनअवेयर अबाउट द यूजर, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक NID. Similarly, there are various other things, like for example, you can see bottle or you can see the table fan or maybe a spoon. जैसे मैंने आपको umbrella का example दिया, what you can do in your home is you can do some practice around the object. You are surrounded with कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जो तुम्हारे सराउंडिंग में है. मैंने 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, जैसे ये आपका बॉटल है, स्पून है, आपका टेबल फैन है. इट कैन बी योर वास, इट कैन बी योर लाइक हैंगर्स और एनीथिंग, एंड उसके अराउंड 30 ब्रांचेस बनाओ. ब्रांचेस मतलब कैसे? जैसे मैंने आपको मटेरियल के बारे में बताया, कल्चरल सिग्निफिकेंस बताया, कलर्स के बारे में बताया, तो जितना आप उसको ब्रेक डाउन कर पाओ एंड देन उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो. देयर आर 1-2 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन, सो आई विल बी शोइंग दैट इन द लेटर स्लाइड. नाउ फॉर एग्जांपल, NID क्वेश्चंस ऑफन एक्सपेक्ट एक्सपीरियंशियल थिंकिंग. एक्सपीरियंशियल थिंकिंग भी एक तरीके की माइंड मैपिंग है जो NID के क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो. नाउ ये क्या होता है? लाइक 5 सेंसेस एक्सपेंशन मैप. 5 सेंसेस क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड आप उसको 5 सेंसेस में देख सकते हो. इट कैन बी अ ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनी सिनेरियो, इट कैन बी अ बस स्टैंड, इट कैन बी अ रेलवे स्टेशन. अगर मैं कोई रेलवे स्टेशन ले लूँ तो उसके 5 सेंसेस में मैं क्या सोच सकती हूँ? लाइक व्हाट कुड बी द मटीरियल, व्हाट आर द लाइक साउंड्स यू आर हियरिंग ऑन अ रेलवे स्टेशन, व्हाट आर द थिंग्स यू आर टचिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल आर यू सराउंडेड विथ एट द रेलवे स्टेशन. तो ये 5 एक्सटेंसिव आप मैपिंग कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ साइट्स हो गया, साउंड हो गया, विसल हो गया, टच हो गया, टेस्ट. साइट्स में हाउ आर द क्राउड्स, डिजिटल डिस्प्लेज हैं कि नहीं हैं, कलर्स कैसे हैं उसके सराउंडिंग में, साउंड में अनाउंसमेंट की साउंड आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, ट्रेन की विसल की साउंड आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है. देयर आर मल्टीपल ट्रेन्स विच आर अप्रोचिंग द प्लेटफॉर्म. सिमिलरली स्मेल कैसी है? डीजल की स्मेल है, फूड स्टॉल की स्मेल है, रेन की स्मेल है, what kind of smell you are feeling. So ये आपके सेंसरी पार्ट्स में आ जाते हैं. टच, मेटल रेलिंग कैसी है आपकी, टिकटिंग का काउंटर कैसा है आपका, बैग्स कैरी कर रहे हैं लोग, लगेज का एरिया कैसा है आपका, अगेन द टेस्ट, द लोकल स्नैक्स, द टी. सो एवरीथिंग, साइट, साउंड, स्मेल, टच, बैग्स, ये आप डिफाइन कर रहे हो कहाँ पे? कीपिंग रेलवे स्टेशन इन योर माइंड. जो जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है और आपको समझ में आ रही है, आपने उन चीज़ों को लिख लिया. नाउ डिजाइन सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन योर सेंसरी प्रॉब्लम. अब वहां से आपको प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना है. अगर मैं बोलूं तो साउंड को लेकर के आई कैन हैव अ सेंसरी प्रॉब्लम लाइक दैट कि अनाउंसमेंट क्या हो रही है वो मेरे कान में ठीक से नहीं आ रहा है, वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी साउंड्स which is surrounding me. So this improves empathy and user centric design. Empathy, empathize करना क्या होता है? आप किसी भी यूजर को, उसके नीड्स को, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जब आप समझते हो, जानने की कोशिश करते हो, when you put yourself in his or her place, then you are actually empathizing. तब आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी and then you will be able to approach to the solution in a good way. So इस टाइप से आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो. Now for example, साउंड बेस्ड क्वेश्चन आपका हो सकता है कि रेलवे अनाउंसमेंट्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू हियर बिकॉज ऑफ क्राउड, नॉइज एंड ट्रेन साउंड्स. ठीक है. Now your question could be design a solution that helps passengers receive important announcements without relying only on loudspeakers. Now ये question आपका बिल्कुल आ सकता है. पापा ऐसा क्या solution present करोगे कि इस problem को solve किया जाए? खास करके जो
एजड पीपल होते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो सुन नहीं पाते, और लाउड स्पीकर्स में भी इतना क्लियर साउंड नहीं होता है कि वो सुन पाए ना। देयर आर माइक्स ऑल्सो जिस पे बोला जाता है, बट अगेन वो इतना फिजिबल नहीं है। तो ऐसे क्या सोल्यूशंस प्रेजेंट कर सकते हो ना? वी ऑल हैव मोबाइल फोन्स। हम क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं, मे बी हम कोई एक ऐसा कियोस्क बना सकते हैं, मे बी हम कोई ऐसा एल्डर फ्रेंडली जो एजड पीपल हैं उनके लिए ही वो कियोस्क, वो काउंटर्स बने हों। ऐसा क्या बनाया जा सकता है जिससे ये अनाउंसमेंट्स डिफिकल्ट ना हो इन लोगों के लिए, या फिर वो इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट ना हो। इससे बहुत से एक्सीडेंट्स भी रोके जा सकते हैं। सो दैट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे पुट किया है। ऐसे क्वेश्चन आपको NID में भी आते हैं और आपको सीड में भी आते हैं। नाउ वन ऑफ द मोर वेज ऑफ माइंड मैपिंग कुड बी, आपको यहाँ पे बहुत सारे बॉटल्स दिख रहे होंगे, अलग अलग इमेजेस हैं, आइकॉन्स हैं बॉटल्स के। ना सिर्फ इतने ही बॉटल्स नहीं हैं, देयर आर मेनी बॉटल्स सराउंडिंग यू। बहुत बेहतरीन डिज़ाइंस के बॉटल हैं, थर्मल बॉटल्स भी हैं जो कूल एंड आपके गर्म रख पाएँ पानी को। एंड देन देर आर किड्स ओरिएंटेड बॉटल ऑल्सो, देर आर लाइक दीज बॉटल्स ऑल्सो जो यूजुअली people are carrying for their fun or maybe for the gym or maybe for their office and all. So there are various bottles. Now context shift mapping क्या होती है? आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी bottles हैं वो किसी ना किसी specific user group के लिए बने हुए हैं। A kids bottle के जो कॉन्टेक्स्ट होगी वो डिफरेंट होगा, उसको लाइट वेट चाहिए क्योंकि उसके बैग भी हैवी है, उसके बुक्स भी हैं। सो किड्स का बॉटल होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा फॉर द people who loves to go to gym or loves to go for hiking. So depend करता है कि वो किसके लिए है। Now at home storage के लिए अगर मैं बात करूँ, so at home हम जो बॉटल लेते हैं मे बी वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मे बी दैट कैन बी केप्ट इन द फ्रिज। सो डिपेंड्स कि वो स्टोरेज का उसका मेजर पर्पस है। स्कूल के लिए अगर हम देख रहे हैं तो इट शुड बी लाइट वेट, माउंटेन्स के लिए देख रहे हैं तो थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए, ड्यूरिंग डिजास्टर रिलीफ के लिए देख रहे हैं तो भाई वो प्यूरिफिकेशन वन ऑफ द एस्पेक्ट्स होना चाहिए। फॉर एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी यूज होना चाहिए, एल्डरली इजी ग्रिप होना चाहिए ताकि उनके हाथ से ना फिसले वो, बिकॉज ओल्डर्स के जो हैंड होते हैं मोस्टली दे आर शेकी मेनी टाइम्स। चिल्ड्रन के लिए वो स्पिल प्रूफ भी हो सकता है। सो ये सारे आपके कॉन्टेक्स्ट हैं जिसके ऊपर यू सेट योर डिजाइन एंड द प्रोडक्ट इज मेड अकॉर्डिंग टू द यूजर, एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली अप्रोच एंड थिंक अबाउट एनी क्वेश्चन। हम यूं ही कोई भी डिजाइन नहीं बना देंगे बॉटल का, वी हैव टू थिंक अबाउट द यूजर, वी हैव टू एम्पथाइज अबाउट द नीड्स of that very product, and then only you can decide any product. So that was the bottle, it can be something else also, it can be bags also, so the question can be related to any of them. Cross domain association map, innovation often comes from combining unrelated field. अब we know that trees are a living being, ठीक है। अगर हम इसको किसी अनलिविंग थिंग के साथ कंबाइन कर दे तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? Now the question is for you. आप सोचो कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं? डेफिनेटली प्रोडक्ट बन सकता है, और कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। जैसे टेक्नोलॉजी, फैशन, आर्किटेक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन, गेमिंग, रोबोटिक्स, these all areas can be combined with trees and a very different product can be made. तो ऐसा हो सकता है। Now all these things I have written like in all the slides, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। मीनवाइल मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग एंड यू कैन यूज इट हियर। नाउ ट्रीज प्लस आर्किटेक्चर, तो लिविंग बिल्डिंग्स बन सकती हैं। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स ना जहाँ पे ग्रीन वॉल्स बनी हुई हैं, देयर आर वॉल्स ऑफ लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स जो कि हीट को भी ऑब्जर्व कर रही हैं, जो कि उस प्लेस को कूल रख रही हैं। There are trees plus technology, air purification sensors बन रहे। There are tree plus fashion, bio fabric clothing हो रही है। Now many of you aspire to become a fashion designer. How are you going to do something different for the society? So बायो फैब्रिक क्लोथिंग अभी है, आ चुका है, आप उसमें और क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ट्री एंड मेडिसिन, मेडिसिनल बार्क एप्लीकेशन, तो उसके जो बार्क होते हैं उसमें भी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। क्या उसको कंबाइन करके कोई आयुर्वेदा
में अप्लाई किया जा सकता है. सो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं. सो क्रॉस डोमेन थिंकिंग प्रोड्यूसेस हाईली ओरिजिनल आंसर्स. नाउ माई one of the most important thing which I would like to tell you is कि you have to study guys, you have to gain knowledge, you have to keep your eyes and ears very much open. Observation skills आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर ये सब कुछ होगा you will be able to solve and imply all these areas. Now ये जो creativity है वो कहाँ से आती है? ये कहीं किसी ने किसी को गिफ्ट नहीं कर दी है, किसी को बचपन से भगवान ने नहीं दे दिया है. इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड योर नॉलेज. जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम ट्रैवल करोगे, जितना तुम चीज़ों के बारे में जानना चाहोगे, ये वाई, हाउ, व्हाट क्वेश्चंस आप जितना पूछोगे, उतना आपकी इमेजिनेशन, उतना आपका ऑब्जर्वेशन, उतना आप ये सारी enhance होगी, and then ultimately you'll be able to use these ideas in your drawing, and that's how you become creative. Moving forward, there is again one more type of mind mapping which is called reverse thinking. Reverse thinking का मतलब क्या है कि हम अभी उसके यूजर के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, देन वी आर प्रेजेंटिंग अ सोल्यूशन. हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय करने का भी सोच सकते हैं. जब हम डिस्ट्रॉय करने का सोचेंगे, हम उसके ऑपोजिट भी सोचेंगे. कैसे, ये मैं आपको बता रही हूँ. इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ टू इम्प्रूव, यू कैन थिंक अबाउट हाउ टू मेक इट वर्स. अगर मैं बैग डिजाइन कर रही हूँ, हाउ कैन आई मेक अ वेरी बैड डिजाइन ऑफ अ बैग. कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, उसको बहुत हैवी बना दो, मतलब उसका मटेरियल इतना हैवी बना दो कि वो उठे ही ना. उसको वाटर प्रूफ सिर्फ अंदर से बनाओ, बाहर से वो भीग जाए और वो इतनी वाटर को वो ऑब्जर्व कर ले कि वो ऑटोमेटिकली और हैवी हो जाए. उसके हैंडल्स को शार्प बनाओ ताकि आपको उसको कैरी करने में ना बने. कोई कंपार्टमेंट बनाओ ही मत, बाहर से, साइड से कोई बॉटल नहीं रख सकते, कोई टिफिन नहीं रख सकते, कोई चेंज नहीं रख सकते. उसको ट्रांसपेरेंट बना दो, अंदर की सारी चीजें आपको दिखे ताकि वो इजीली एनीवन कैन स्टील इट. ब्रेकेबल स्ट्रैप्स, टूट जाए, थोड़ा सा उसको खींच दिया, वो टूट गया. सो व्हाट आर दीज? दे कैन मेक अ टेरिबल बैग. बहुत बुरे कंडीशन में वो बैग डिजाइन होगा. नाउ इफ यू नो दैट दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक योर बैग लुक एंड maybe handle in very terrible way, तो आप ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट सोच सकते हो. रिवर्स एवरी पॉइंट. हैवी है तो उसको लाइट वेट बनाइए, शार्प है तो अर्गोनॉमिक बनाइए, कंपार्टमेंट नहीं है तो स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशंस रखिए, ट्रांसपेरेंट है तो प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रखिए कि आपको अंदर की चीजें ना दिख पाए. Many breakthrough ideas come from these reverse thinking. Now यही वो तरीका है जिससे हम reverse thinking mind mapping करते हैं. One of the areas जिससे आप बहुत logical and clear solutions present करते हो. Now through this complete session guys, I have tried my best कि मैं आपको बता पाऊँ कि कितने तरीके से आप सोच सकते हो. और जब आप इतने areas में, इतने variations में सोच पाओगे, अगर आप user के बारे में सोच पाओगे, context set कर पाओगे, अगर आप reverse सोच पाओगे, definitely you're going to come up with a brighter and a more valuable solution, and that means a lot. So through this session I have tried my best to come up with the mind mapping techniques. There are many other mind mapping techniques too, जैसे कि scamper भी होता है. One of the mind mapping techniques है scamper, and please remember SCAMPER इसका भी full form है. You can go and search from Google, and these questions usually come in your MSQ and MCQ as well. तो इसको भी आप याद रखिएगा. प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में मैं आपको स्कैम्पर के बारे में समझाऊंगी. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, गो एंड सब्सक्राइब इट, लाइक इट, एंड इफ यू want online and offline classes, we are based in Dwarka, and you can come and contact me on the number which is being flashed on the screen. My team will get in touch with you. We have hybrid classes, and there are students from across India taking our classes, so you can come and join the same. And that's it for today's session. I hope you like it, and if you have any questions related to this topic or any other topic, you can come to the comment section, put up your queries there, and I'll be happy to help you. So that's it. This is your mentor Sanyukta Singh signing off. Till then, take care. Bye bye.